Okay, good morning and assalamu alaikum everybody. Uh, Welcome to another lesson for editing terminologies. And obviously, we are doing this for section A of your paper one. I mean, the theoretical paper, where in section A you would be shown a video clip by Cambridge. Usually, it's a Hollywood drama. I mean, season. They call a season as a Hollywood drama, and it will be played 4 times in front of you, as I told you earlier many times. And after the playback 4 times, you will be given almost 45 minutes to do the analysis. So what would you be analyzing? The camera movement, camera shots, camera angles. Then you will be observing the editing strategies, editing style of that video clip. You will also observe and talk about sound. You'll be observing acting style and lighting and mise-en-scène. Mise-en-scène means overall everything that is visible in the frame, in the scene. That includes props, include surrounding, furniture, their dressing style, their talking style, their acting style, everything. And obviously we just began this part, this thing, the textual analysis thing. So I'm not expecting you to be perfect by now. We would be doing some activities. आज भी हम एक activity करेंगे. एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद, एडिटिंग हमारे भी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू practical activity, जिसमें I would play you back a clip and you will be required to just thoroughly watch it, और उसके बाद आप इसका analysis नहीं करोगे. इनफैक्ट वो आपको होमवर्क की फॉर्म में दूंगा. इस तरह से है कि मैं आपके साथ बैठ के एनालिसिस करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कैम्ब्रिज क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. उसके बाद यू विल बी डूइंग द सेम बाय योरसेल्फ. इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स लेते लेते वी वुड बी ऑन द मोर सॉलिड ट्रैक. सो यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट continuity and non continuity editing, क्या होती है, कट्स कहाँ लगते हैं, शॉर्ट रिवर्स शॉट क्या होती है, and I showed you some videos about that to clarify your concept. We also talked about eyeline match and action match or cutting on action, which is really important, and we thoroughly talked about the door knob or the door opening scene. Then we also talked about jump cut, and we figured out that there are two kind of jump cuts. Jump cuts is not a mistake. First of all, jump can be a mistake if there is an gap within the story and something feels to be missing, then it can be a mistake. But the good cinematographers or directors use jump to convey a message that time has jumped, either went back or flash forwarded. And similarly, spatial jumps also, like first scene is shot at one location, the next scene with the same guy is shot at another location, and it seems something strange, to that will be called as spatial jump, means space wise jump. But we also talked about some bookish rule about spatial jump, that was 30-degree if the character is back on the same place to complete the scene. But if you don't want it to look like uh, uh, some other scene, I mean, some break was there, some cut was there, so you have to ensure as a director that the character should sit uh, within 30-degree angle. मतलब 30 डिग्री का थोड़ी सी 19-20 अल्ट्रेशन वुड बी ओके. इससे ज़्यादा करोगे तो इट विल फील लाइक अ जंप. ठीक है, जंप बुरा नहीं होता, लेकिन jump sometimes weird हो सकता है अगर आपने प्री प्लान यूज नहीं किया हुआ. ओके, लेटर ऑन वी टॉक्ड अबाउट क्रॉस कटिंग एंड पैरेलल एडिटिंग, माय फेवरेट. इसमें हमने अमेरिकन स्नाइपर के कुछ पार्ट्स देखे थे, उसके फिल्म ओपनिंग का, एंड द डायरेक्टर एंड द सिनेमाटोग्राफर वेरी स्मार्टली, ब्यूटीफुली दे sorry, they implemented the concept of parallel editing. And same thing, happens in many Hollywood films and seasons, and that is the key to keep your audience sitting at the edge of their chairs or seats and stick to the scene or stick to the film, because many things used to be happening at the same time. Anyways, we also talked about, let's take your attendance as well. We also talked about a written example of woman and who takes shower, and when he gets out, somebody stabs her to death. So we talked about two scenarios. One is childish, immature, student-like, scenario where things are short
and edited in a very linear way, one after the other. But if you talk about professional work, things should be, you know, edited and placed on the timeline of the editing software, or you can say in the final product, that three and two or maybe four things are happening at the same time. The way I gave you example of a student who is a regular victim of bullying in the college, तो अगर आपने इसकी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है और आखिर में कुछ सोशल मैसेज देना है, तो ऐसा नहीं होगा आप सुबह उसके उठने से लेके गाड़ी में बैठने से लेके रोड्स और कॉलेज और क्लासरूम और बुली सीन दिखाओगे, आप पैरेलल भी कुछ दिखाओगे कि जब वो स्कूल की पार्किंग में आ रहा है तो उस वक्त बाकी लड़के कॉरिडोर में खड़े हुए हैं, ठीक है, मे बी उसको पेपर बॉल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, या उस वक्त कुछ कोई जेनिटर स्टाफ साथ साथ सफाई कर रहा है, मॉपिंग कर रहा है. सो ये पैरेलल तीन चार चीजें दिखाओगे तो एक तो ऑडियंस बोर नहीं होगी. आई टोल्ड यू, ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, ऑडियंस को स्पून फीड करने की कोई जरूरत नहीं है. ऑन द अदर हैंड ऑडियंस कैन गेट बोर अगर एक सीन मोनोटनी से आप दिखाई जा रहे हो या 5 सेकंड से ज्यादा एक शॉट लंबी हो जाती है. आई होप हम इस पे बात कर चुके हैं. जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिफ्रेशर, यू कैन से today we are going to move on from another thing that is called cutaway shot. uh, Cutaway shot, actually there are, it has another confusing competitor term which is called insert shot. I think insert shot यहाँ पे हाँ मैंने दी हुई है. Okay, let's talk about cutaway first. Cutaway होती क्या है? You know, in film and video, if you talk about the bookish thing, a cutaway shot is the interruption of a continuously filmed action by inserting a view of something else. The interruption is usually quick and is usually, although not always, ended by a return to the original scene. It is usually, although not always, followed by a cut back to the first shot when the cutaway avoids a jump cut. The cutaway shot does not necessarily contribute any dramatic content of its own, but it helps, or it used to help, the editor assemble a longer sequence. For the reason, editor choose cutaway shots related to the main action, such as another action or object in the same location. Acha, for example, the main, explain that. For example, if the main shot is of a man walking down an alley, possible cutaway might include a shot of a cat nearby dumpster. अब गौर से मेरी बात सुने, cutaway shot जो है एक तो मोनोटनी तोड़ने के लिए यूज हो सकती है, या आपके उस सीन को लंबा करने के लिए यूज हो सकती है. ये एक शॉट होती है, एडिटर आपकी मेन सीन में डाल देता है, और ये शॉट यूजुअली उसी सराउंडिंग में ली जाती है, लेकिन उसका फिल्म का स्क्रिप्ट से ताल्लुक नहीं होता. जैसे इस एग्जांपल में आपका मेन फिल्म या सीन जो था वो एक मे बी हीरो और विलन किसी का था जो किसी एले या गली में वॉक कर रहा है. सडनली एक कैट दिखा दी गई, ठीक है, because cats are found in the streets, but cat has nothing to do with the film or the script. Getting my point? It's just to add the length of the footage, or you can say के with बेतुकी शॉट होती है आमतौर पे. इसका इनडायरेक्ट लिंक हो सकता है उस सराउंडिंग से, लेकिन स्क्रिप्ट से आमतौर पे लिंक नहीं होता. ऐसा ही है कि अगर आपने अपने कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बनानी है सिटी रावी की, और उसमें आपने यूं कह लो कि फर्स्ट ईयर या एएस जो है, आप लोग उन सब में अपने फ्रेंड्स का फीडबैक लेते हो, उससे कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, हेडमास्टर का व्यू या कुछ भी रिकॉर्ड करते हो, इंटरव्यूज, और जो पासिंग आउट बैच है उनके टेस्टिमोनियल्स कैप्चर करते हो, उनके यानी कि मेमोरीज कैप्चर करते हो. ये तो आप करोगे. इसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा बेटा कुछ कटवे शॉट्स भी ले लो. मसलन हवा चल रही तो ट्री हिल रहा है, ठीक है, छोटे बच्चे सॉकर फुटबॉल जो मर्जी ग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और कैंटीन में क्या हो रहा है, कॉरिडोर में मॉपिंग या जेनेटर स्टाफ मॉपिंग कर रहा है. ये सारे आप कटवे शॉट्स है, ये आपकी सीन की लेंथ भी बढ़ाएंगे. ज्योग्राफिकली उसी एरिया में ये वाकयात हो रहे हैं, उसी एरिया में सब कुछ एक्शन हो रहा है, लेकिन आपकी स्टोरी से इसका लिंक ना भी हो, स्टिल आप लगा देते हो, ठीक है. सो दिस इज कट अवे शॉट. मकसद वही हमने वैरायटी देनी. इंसर्ट शॉट क्या होता है? इंसर्ट शॉट उसी एक्शन को किसी और एंगल से कैप्चर करना या किसी और लेंस से कैप्चर करना. दैट इज कॉल्ड इंसर्ट शॉट. सिंपल इज दैट. कटवे में फर्क यह है कि उस शॉट का आपके सीन से कोई खास ताल्लुक नहीं है, बट इंसर्ट शॉट जो है उसका डेफिनेटली ताल्लुक है, ठीक है. अब इसकी हम देख लेते हैं. इन फिल्म एंड इंसर्ट इज अ शॉट ऑफ विच इज पार्ट ऑफ अ सीन, राइट, जो मैंने आपको बताया अभी.
as film from different angle or a focal length. Focal length means lens कह लो, because different lens के different focal length होते हैं, या master shot, यानी कि जो आप मेन एस्टैब्लिशिंग शॉट लेते हो वो भी इंसर्ट शॉट हो सकती है. बिकॉज जैसे मैंने आपको पॉलिटिशियंस वाला दिखाया था जिसमें दो पॉलिटिशियंस बात कर रहे होते हैं, शुरू में आपको दिखाया था मैंने, आई थिंक आपकी ओरिएंटेशन में प्रॉब्ली. अब उसमें जो शुरू में एस्टैब्लिशिंग शॉट थी वो इंसर्ट शॉट भी थी, जिसमें बाहर से पार्लियामेंट हाउस या वो प्रेसिडेंट हाउस नजर आ रहा था. आई होप यू कैन रिकॉल. अभी मैं वो प्ले करके आपको छोटी सी एग्जांपल के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा बिकॉज रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. सो एनीवेज, आई होप यू आर गेटिंग इट. So insert shot is a relevant shot to show audience the action, the drama, या fight जो भी चल रहा है at that moment from another perspective, another angle, another distance. ठीक है, लेकिन cut away is just a random shot which may be indirectly relevant but not directly. उसके बाद most importantly my dear students, guys, अगर आप ये सारी चीजें अपने, अब लेट से आज से पहले आप मोबाइल फोन से वीडियोग्राफी करते थे, आप थोड़े बहुत एडिटिंग टूल शायद आपको आता होगा. अभी मुझे किसी के बारे में पता तो नहीं है, किसी को ज्यादा आता है, बहुत अच्छी बात है. और किसी को कुछ नहीं आता, वो मोबाइल फोन में एडिट करता है, विंडोज मूवी मेकर में करता है या आई मूवी में करता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसमें प्रोफेशनलिज्म तब ऐड होगा जब आप ये चीजें डालोगे उसमें. ठीक है, इंसर्ट शॉट्स, कट अवे, पैरेलल एडिटिंग, क्रॉस कटिंग, जे कट, एल कट. अब जे और एल कट क्या, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज में, अच्छी फिल्म्स में, जब एक सीन खत्म होता है और दूसरा सीन आना होता है, या एक शॉट खत्म होती है और किसी और सीन की दूसरी शॉट आनी होती है, तो बीच में कुछ वो ब्रिज लगाते हैं, कुछ कनेक्टिविटी पैदा करते हैं. अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक नैनो सेकेंड का पॉज भी आएगा और एक साइलेंस भी आ जाएगी, which looks odd, which sounds odd actually. आपको यहीं पे रोक के मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. और उसके बाद फिर मैं आपको, या ये ब्रिटिश काउंसिल आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. या ब्रिटिश काउंसिल की ये एक डॉक्यूमेंट्री है. और एक, लेट मी होल्ड ऑन अ सेक. ब्रिटिश काउंसिल, वेयर आर यू. अच्छा मैंने खोली थी, बट या आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग. इसमें उन्होंने एल कट और जे कट यूज किया है, और दुनिया में जितने भी डॉक्यूमेंट्री कॉम्पिटिशन होते हैं. अच्छा, एक और चीज मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं. आप मीडिया स्टडीज पढ़ तो रहे हो, मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इट एज देयर पैशन, क्योंकि उन्होंने अपना करियर इसी में लेके चलना है. बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इंडिपेंडेंट करियर जिसमें आपको किसी की जगह जॉब करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंसिव गैजेट की जरूरत नहीं है. You should have a good aesthetic sense to capture good, cool looking videos. A video does not mean only a film or a music video. डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज लोकल चैनल्स और इंटरनेशनल चैनल्स परचेज करते हैं. अब यू नो somebody told me I think last week फूड स्ट्रीट में 14 अगस्त के लिए एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी, और ऑन नेक्स्ट डे वहां पे एक म्यूजिक वीडियो शूट हो रही थी. ये आप जैसे लोग ही कैप्चर करेंगे फ्यूचर में जाके, और इनको चैनल्स परचेज करते हैं. ठीक है, चैनल्स के बाद जो लोग हैं दे आर नाउ, यू कैन से डल, नॉट ऑलवेज हैप्पी इन देयर कंफर्ट जोन. आपको पता ही है, विद एज आप कंफर्ट की तरफ चले जाते हो, आप ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, लेकिन जो न्यू कमर्स है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं. सो डॉक्यूमेंट्री इज ऑल्सो वेरी बिग डोमेन. कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री कॉम्पिटिशन होते हैं. एंड व्हेन यू विन, you don't just get a certificate or some monetary reward, you get highlighted. और आपका सिनेमेटोग्राफी या डायरेक्टर का करियर वहां से शुरू हो जाता है. ठीक है, फिर लोकली बात करें तो एचएसएन में भी फेस्टिवल होता है, लम्स में भी होता है. लम्स का तो बहुत फेमस है, और पूरे पाकिस्तान में नस्ट वगैरह में भी और फास्ट में भी 2-3 साल से वो फिल्म एंड वीडियो की कैटेगरी को भी लेके इंक्लूड करते हैं. तो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दोज. तो डजंट मीन दैट यू हैव टू शूट अ फिल्म. आप डॉक्यूमेंट्री कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो रूल्स आज पढ़ रहे हैं एडिटिंग के, ये हर जगह फॉलो करेंगे.
ये नॉर्मली जब आप एडिटिंग इंटरनेट से यूट्यूब सर्च करते हो वो टूल्स आपको सिखाएंगे, वो आपको ये चीज नहीं बता रहे होंगे कि टूल तो सबके पास है, तो क्या वजह है एक डॉक्यूमेंट्री अच्छी लग रही होती है, दूसरी इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, या एक फिल्म या एक म्यूजिक वीडियो अच्छी लग रही होती है, दूसरी सौ लग रही होती है। अब ये ब्रिटिश काउंसिल की जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें आपको कुछ चीजें एलिमेंट्स नजर आएंगे, फिर मैं आपको इसके बारे में बता के दोबारा हम नोट्स पे वापस आएंगे। लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट। मैं शुरू में आपको थोड़ा सा इंटरप्शन करूंगा साथ साथ, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम एंड आई डोंट वांट कि हम इसको 2 दफा प्ले करें, साथ साथ ही मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये क्या हो रहा है? जस्ट आने वाले सीन, अभी सीन हमारे सामने नहीं आया और उसके वोकल्स पहले आने लग गए हैं, उसका साउंड पहले आने लग गया, ताकि ऑडियंस रुके ना, बोर ना हो, चैनल चेंज ना करे, ऑडियंस बंद ना कर दे। ऑडियंस शुड बी वेटिंग बट इज येट टू कम, एंड दैट वाज द सीन जिसकी साउंड पहले आने लग गई थी। तो जो हम अभी बात कर रहे थे जे कट और एल कट की, अगर अगले सीन का साउंड पहले सुनाई देने लग जाए और विजुअल्स बाद में आए, दैट इज कॉल्ड जे कट। यानी साउंड पहले, विजुअल्स बाद में। और एल कट इसका रिवर्स है, अगर विजुअल्स पहले आ जाएं और साउंड पिछले सीन का ही चल रहा हो अभी तक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल कट। दोबारा इसको भी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये थोड़ा सा देख लो आप। अब देखो पिछले सीन का ऑडियो कंटिन्यू था और उन्होंने अगले सीन के विजुअल लगा दिए, तो यहाँ पे उन्होंने एल कट लगा दिया। ये जो अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं इनमें सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जब आप अपनी वीडियो किसी प्रोफेशनल के सामने सबमिट करते हो तो वो वाकई चीजें नोटिस करते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा, अगर आपने किसी चीज को ज्यादा ऑथेंटिक और रियल दिखाना है तो आपने उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत सुनानी है, उनका म्यूजिक भी सुनाना है। दैट इज वाई दिस पश्तो गर्ल्स आर singing some a poem or song in Pashto language. देखो पिछले सीन के ही ऑडियो चल रहा है लेकिन विजुअल चेंज होते जा रहे हैं। Pakistan's literacy rate is deplorable, and that alone can be considered part of the root of at least 2 evils plaguing this society: poverty and terrorism. अब देखो बच्चों के पाँव दिखा रहे हैं, उनके टॉर्न शूज दिखा रहे हैं, उनके क्लोजअप्स दिखा रहे हैं। आई वुड बी रियली हैप्पी अगर आप में से कोई बच्चा इस लेवल पे काम करे और अपने करियर को ऐसे लेके चले। आपने स्टोरी डिटेल से दिखानी है, दूर दूर से नहीं दिखानी। हो सकता है जब आपकी फैमिली में पता चले कि आप मीडिया स्टडीज पढ़ रहे हो तो कि यार मेरी फलां बर्थडे आ रही है, शादी आ रही है, मम्मी आ रही है, प्लीज तुमने कैप्चर करना है। उसके लिए भी आपको टिप दे रहा हूँ, कभी दूर से बुत बन के नहीं खड़े होना, घुस जाओ इवेंट के बीच में। लोगों का व्यू खराब होता है, व्यू खराब होने दो, ठीक है। यू नो लॉन्ग टाइम अगो आई यूज्ड टू कवर सम कॉलेज कॉन्वोकेशंस एंड इस तरह के इवेंट्स कैप्चर करता था मैं, ऑब्वियसली दे यूज्ड टू पे मी, कुछ स्कूल्स भी थे। तो मैं इवन के कुछ कैमरा मैन शर्माते थे कि जजेस के आगे नहीं आना, मैं जाओ जिधर मर्जी, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो आपको पे कर रहा है वो पूछेगा भाई आप इतने दूर दूर से कैप्चर क्यों कर रहे हो, ये तो हम भी कर सकते थे। सो यू हैव टू बी इन बिटवीन द इवेंट। आप बैक स्टेज भी जाओगे, स्टेज के सामने भी आ जाओगे, जजेस क्या आप हार्डली 5-6 सेकंड्स के लिए आते हो, शॉट लेते हो या फोटो लेते हो, आप गायब हो जाते हो वहां से। सो यू हैव टू बी रनिंग हियर एंड देयर। और अगर आप ऐसी डॉक्यूमेंट्री को कैप्चर करते हो तो यू हैव टू शेयर डिटेल्स, और ना सिर्फ डिटेल्स दिखा रहे हैं बल्कि उन्होंने सिनेमैटिकली प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी की है, इसको ब्लर किया हुआ है, डेप्थ ऑफ फील्ड इसको बोलते हैं। These 3 girls hail from a region distraught from both. अब वो पीछे नरेशन चल रही है, साथ साथ उस एरिया के बारे में दुनिया को दिखा रहे हैं, ठीक है। Swat. इस डॉक्यूमेंट के नाम है ब्रिटिश काउंसिल इल्म पॉसिबल। एक होता है ना इम्पॉसिबल, वही ये ILM, इल्म यानी इल्म इज पॉसिबल। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। Till 2010, the state of एंगल्स भी देखो उन्होंने कैमरा कहाँ कहाँ रख के Pakistan regarded primary सिर्फ बोरिंग वे में स्टोरी नहीं बताई उन्होंने, स्टोरी टेलिंग इज गोइंग इन अ वेरी नाइस वे, पता चला इट्स अ प्रोफेशनल वर्क एक्चुअली।
education as a luxury and not a fundamental. और देखो उन्होंने कितना अच्छा कल हम पढ़ रहे थे, एक्शन मैच किया है या कटिंग ऑन एक्शन, पहले स्टेट से चलते हुए दिखाया है, Pakistan regarded नेक्स्ट शॉट primary में education as अभी a भी वो luxury स्टेट्स पे and not a चल रहे हैं, यानी नेक्स्ट शॉट में भी स्टेट्स पे चल रहे हैं वो लोग, या दे गोइंग अपस्टेयर्स। सो एक्शन मैच किया है, कटिंग ऑन एक्शन किया है, fundamental human right. और क्रॉस कटिंग भी किया है कि बच्चे भी दिखा दिए, स्कूल दिखाया, दोबारा बच्चे दिखाए, स्कूल दिखाया, भेड़ बकरियां दिखाई, दोबारा स्कूल दिखाया, मतलब पैरेलल वो दो स्टोरीज को लेकर चल रहे हैं। I hope you are getting what I'm trying to say. अच्छा, we are not going to talk about this documentary throughout the lesson. We have other things to do, but I hope कि आपको idea हो गया होगा. Let's get back to the J cut. अब J cut क्या है? अगर next scene का ऑडियो पहले आ जाए और विजुअल्स बाद में आए, that is called J cut. अगर नेक्स्ट सीन के विजुअल्स पहले आ जाए और ऑडियो बाद में आए, that is called L cut. ठीक है? ये कंफ्यूजिंग टर्म है, आपको कंफ्यूज करेगी। अगर आपने इसको मेमोराइज करना है तो हम देसी टोटका में आपको बता सकता हूँ, जस्ट बिकॉज दोनों कंफ्यूजिंग है ना, जे कट है क्या एल कट है। देखो अगर विजुअल पहले आते हैं तो एल कट है, बिकॉज विजुअल में एल आ रहा है और यहाँ पे भी एल लिखा हुआ है। अगर ऑडियो पहले आती है तो जे कट। ठीक है, तो ये आपने नोटिस करना है। अच्छा, उसके बाद मैंने जो आपको बात बताई थी कट अवे और इंसर्ट शॉट की, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड बी रोल। बी रोल कुछ लोग अच्छा, इसमें लोगों की दो तरह की अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की जगह ठीक होंगी, लेकिन जो बुकिश अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको वो बताऊंगा। बी रोल जो है इसका पर्पस होता है डिटेल से किसी एक्शन को दिखाना। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा जो है वो बार बार, मेरी वही घिसी पिटी एग्जाम्पल, वो मोबाइल फोन को यूज कर रहा है। टीचर उसको शाउट करके कहते हैं जस्ट स्टॉप इट, stand up, and after giving many warnings, now I'm going to suspend you from the class for like 3 days. Okay, सब लोग खामोश हो गए, डर के, वो एक्सप्रेशंस कैमरे में आप सब कैप्चर कर रहे हो। अब टीचर जल्दी से अपने बैग से पेपर निकालता है और उस पे दो लॉन्ग शॉट में दिखा रहे हैं कि कुछ लिख रहा है। अब लॉन्ग शॉट में हमने ऑडियंस को दिखा दिया, बट ऑडियंस वुड लाइक टू सी के पेपर पे हो क्या रहा है, टीचर लिख क्या रहा है। तो अब टीचर के ओवर द शोल्डर जाके या टीचर के आंखों के सामने कैमरा रख के, जैसे उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और दिखाएंगे वो वार्निंग स्लिप पे साइन कर रहा है। ये जो वार्निंग स्लिप पे साइन करने वाली चीज है, दैट इज कॉल्ड अ बी रोल, कि आप मेन एक्शन को ज्यादा डिटेल से दिखा रहे हो। आई होप इट इज कॉम्प्रिहेंडेबल टू यू कि वो कहना क्या चाह रहे हो। अब बुक को भी, ये नोट्स को भी देख लेते हैं। B-roll is an incredible asset when it comes to creating an engaging video production. यहाँ से मैं आपको इस दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। पहली एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने बी रोल को यूज नहीं किया। ये किसी जिम के बारे में एक एडवर्टीजमेंट है, जिसमें एक बड़ा मस्कुलर सा जिम का ओनर या मस्कुलर का जिम का कोच आता है। उसकी शुरू में लगा दी है मिड क्लोजअप, ठीक है, दूसरी शॉट उसकी लगा दी है अप्रोक्सीमेटली मिड शॉट, तीसरी फिर मिड क्लोजअप, फोर्थ फिर मिड क्लोजअप, फिफ्थ फिर मिड शॉट एंड सिक्स्थ इज मिड क्लोजअप। मतलब वो बोल रहा है, अपनी तारीफे के पुल बांध रहे और एडवर्टीजमेंट खत्म हो गई। बैड एडवर्टीजमेंट। दूसरी क्या है, जिसमें सबसे पहले वो बाहर से एस्टैब्लिशिंग शॉट दिखाता है कि जिम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, किस बिल्डिंग में एग्जिस्ट करता है। नंबर टू, अच्छा जब ये बिल्डिंग दिखा रहे थे, हो सकता है इसके वोकल्स यानी इसका ऑडियो आ गया हो पहले से ही, ठीक है। सो अगेन, अगर ऑडियो पहले आ गया तो दैट इज कॉल्ड अ जे कट। जे कट के बाद ऑडियंस पहले ही मेंटली तौर पे प्रिपेयर थी कि हमें नेक्स्ट शॉट पे जाने, somebody would be talking and they found that somebody in the next shot। अच्छा, जब वो बोल रहा था तो उसके बाद उसके बोलते बोलते ही उसकी नरेशन के साथ सडनली जिम के विजुअल दिखाना शुरू कर, जहाँ पर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस दिखा के दोबारा उस बंदे पे ले आए जो कि जिम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। दिस इज बेटर अप्रोच बिकॉज दे हैव यूज्ड बी रोल्स। बी रोल्स, ये भी बी रोल है, ये भी बी रोल है, जिसमें आप उसके एक्शन के, उसकी बातों की डिटेल्स दिखा रहे हो, ठीक है। नॉर्मली लोग ऐसे काम करते होंगे, बच्चे करते होंगे, स्टूडेंट जिन्होंने सीखा नहीं होता, बट इस तरह का काम होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस ब्रिंग्स एंड टू आवर दिस थिंग। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ और इस पर हम फिर चलते हैं। अच्छा, पर्पस तो मेरा ये था कि मैं आपसे अपने सामने एक्टिविटी करवाता, लेकिन हम एक्टिविटी शुरू जरूर करेंगे, वी आर ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स लेफ्ट, लेकिन ये आपका होमवर्क भी होगा। इसको हम करते हैं और
मैं आपके सामने प्ले करने लगा हूँ एक क्लिप, और होल्ड ऑन अ सेक। या आपने सिर्फ इसको स्टोरी में नहीं खोजना, थॉरली देखना है कि इसमें कैमरा वर्क कैसा था और एडिटिंग कैसी थी, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ इंटरप्ट करके गाइड करूंगा जस्ट आज के लिए कि, और उसके बाद जब आप यू विल बी ऑन योर ओन, खुद भी आप करोगे इस असाइनमेंट को, और आगे हमने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करनी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीन से कि हुआ क्या। So the scene starts with a ट्रक शॉट या क्रेन डाउन शॉट, ठीक है। ये आपने सबसे पहले एक टेक्निकल टर्म ऑब्जर्व कर ली। क्योंकि क्यों यूज किया गया, बिकॉज एट द सेम टाइम वो बड़े सिनेमैटिकली बिल्डिंग की टॉप से लेकर नीचे तक दिखाना चाहते थे और एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, ठीक है। Be careful. अब ये दिस इज कॉल्ड बी रोल, उन्होंने डिटेल से दिखा दिया है। कैमरा ट्रैकिंग कर रहा है, डॉली इन नहीं कर रहा है, ये ट्रैकिंग कर रहा है। आई टोल्ड यू डॉली इन छोटी सी जगह पे होती है, ज्यादा देर तक कैमरा फॉलो करे तो दैट्स कॉल्ड ट्रैकिंग शॉट। इसको ट्रक शॉट भी बोलते हैं लेकिन ट्रैकिंग बोलेंगे आप। अब कितना स्मूथली अब एडिटिंग की इन्होंने एक्शन मैच किया है। वहां पे बच्चा भागते भागते नेक्स्ट शॉट लगा दी, यानी ये शॉट थी, साथ ही और कटिंग ऑन एक्शन मूवमेंट से मूवमेंट को काटा है, यानी आगे उन्होंने स्टिल शॉट लगाई, पीछे कैमरा मूव कर रहा था तो अभी भी मूव कर रहा है। अच्छा, वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग आपको क्या लगता है ये कहाँ उन्होंने शूट किया है? ये रियल रोड्स नहीं होती हैं, ये स्टूडियो होते हैं। यू भी शॉट से इतना बड़ा स्टूडियो, यस, कैलिफोर्निया, हॉलीवुड में, रादर हॉलीवुड में वार्नर ब्रॉस का, WB का बहुत बड़ा कई एकड़ों पे फैला हुआ स्टूडियो है। फ्रेंड्स का सीजन भी वहीं शूट हुआ था लॉन्ग टाइम अगो। अभी भी काफ़ी जो चेस सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे गाड़ियों की चेज हो रही होती है या पुलिस कोई चल रहा होता है सिलसिला, वो सब कुछ आमतौर पे इन बड़े स्टूडियोज में होते हैं। और ये बारिश भी मोस्ट प्रोबेबली फेक है। पीछे देखना, जस्ट सड़क पर पानी फेंका होगा और वो गीली की होगी, और यहाँ पे एक्चुअली कैमरे के सामने बच्चे पे बारिश हो रही है, और इधर भी, और ऊपर जो है ना ये क्लाउड्स, ये मे बी उन्होंने एडिट करके लगाए हैं। मतलब देयर आर चांसेस। अब देखो कितना यूनिक उन्होंने बर्ड्स आए एंगल लगा दिए यहाँ पे कि बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज स्टोरी के साथ साथ सिनेमेटोग्राफर ने इम्प्रेस भी करना ऑडियंस को और अपनी इंडस्ट्री के लोगों को, ताकि उसको और काम मिले, और डायरेक्टर ने भी। अब देखो कितना अच्छा उन्होंने एक्शन मैच किया है। यहाँ से इस बच्चे को हिट हुई, और ये दूसरा शॉट है, पिछला शॉट कैमरा पीछे था, नेक्स्ट शॉट कैमरा उसके आगे आ गया, और उन्होंने ये 2 दफा उसको ये हेड टच किया होगा, और ये वैसे ये फोम का बना होगा, देखने में ये वुड का लग रहा है, और जो साउंड है ये टक्कर करने की, ऑब्वियसली आपको पता है वो इफेक्ट्स लगाए होंगे, लेकिन कितने स्मूथली उन्होंने एडिट किया हुआ यहाँ पे आप देख रहे हो। बी रोल और लो एंगल शॉट्स।